हेलो नमस्कार बच्चा लोग। नाइन्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम के दोनों ही स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जो हमारा यूनिट टेस्ट 7 होने वाला है 2 तारीख को, 2 मार्च 2021 को, जिसमें हमें पूछे जाएंगे चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 12। और इस वीडियो में हम हमारा जो यूनिट टेस्ट होगा उसको प्रिपेयर करेंगे थ्रू दिस वीडियो। So you can note down this syllabus. This many points will be asked. ये जो points है આ જેટલા પણ મેં points લખ્યા છે એ છે આપણો સિલેબસ ચેપ્ટર નંબર 8 નો, ચેપ્ટર નંબર 9 નો. જો તમને તમારી નોટબુકમાં લખવું હોય તો વિડીયોને પોઝ કરી તમે લખી શકો છો. અહીંયા હું તમારી માટે ઝૂમ કરું છું, તમે જોઈ શકો છો. આપ સબ લોગ દેખ सकते हो. ચેપ્ટર નંબર 8 ગુજરાતીમાં ચતુષ્કોણ અને ઇંગ્લિશમાં ક્વાડ્રિલેટરલ્સ, જેમાં તમારી પાસે ટેક્સ્ટ બુક હોય તો ટેક્સ્ટ બુક ઓપન કરીને તમે જોઈ શકો છો. 8.1 એટલે કે પ્રસ્તાવિક, जिसका मतलब है इंट्रोडक्शन. 8.2 એટલે કે ચતુષ્કોણના ખૂણાઓના સરવાળાનો ગુણધર્મ, એંગલ સમ પ્રોપર્ટી ઓફ ક્વાડ્રિલેટરલ. 8.3 ચતુષ્કોણના પ્રકાર, ટાઇપ્સ ઓફ ક્વાડ્રિલેટરલ્સ. 8.4 ચતુષ્કોણના ગુણધર્મો, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. प्रमेय 8.1 साबिती साथे, मतलब कि थियरम 8.1 विथ प्रूफ, उसका प्रूफ पूछा जाएगा थियरम 8.1 का. देन थियरम 8.2 થી 8.10 સુધી ખાલી એનું સ્ટેટમેન્ટ જ એટલે કે પ્રતિજ્ઞા, જે થિયરમ 8.2 થી થિયરમ 8.10 સુધી ખાલી પ્રતિજ્ઞા જ પૂછવામાં આવશે. એટલે કે સ્ટેટમેન્ટ, ખાલી જે થિયરમનું સ્ટેટમેન્ટ હોય એ જ. પછીનો મુદ્દો છે 8.5 ચતુષ્કોણ સમાંતર થાય તેની બીજી શરતો. અનધર કન્ડિશન ફોર અ ક્વાડ્રિલેટરલ ટુ બી અ પેરેલેલોગ્રામ. કોઈ પણ ચતુષ્કોણ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ હોય તો એની શું શરત હોય, તો એ છે ટોપિક નંબર 8.5. પછી છે સ્વાધ્યાય 8.1, જેમાં ક્વેશ્ચન નંબર 1 only we have to do question number 1 in exercise 8.1. then the next topic is 8.6 મધ્યબિંદુ પ્રમેય, જેને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ધ મિડ પોઈન્ટ થિયરમ. તો આ હતું, આટલું આપણો સિલેબસ છે ચેપ્ટર નંબર 8માંથી. આ બધા જ આપણે મુદ્દાઓ ડિટેલમાં આ વિડીયોમાં આપણે સ્ટડી કરીશું. ત્યારબાદ છે ચેપ્ટર નંબર 9, પછી ચેપ્ટર નંબર 10 અને ચેપ્ટર નંબર 12. એના જેટલા મેં મુદ્દા અહીંયા લખ્યા છે એ એક્ઝામમાં આવી શકે છે. ચેપ્ટર નંબર 10ના મેં જેટલા મુદ્દા લખ્યા છે એમાંથી એક્ઝામમાં પૂછાશે, અને ચેપ્ટર નંબર 12ના જે મુદ્દા લખ્યા છે મેં અહીંયા એ આપણા એક્ઝામમાં પૂછાશે. જો તમને લખવું હોય તો તમે લખી શકો છો, વિડીયોને પોઝ કરો, પણ મને લાગે છે કે લખવાની જરૂર નથી, કેમ કે આપણે આગળ આ દરેક મુદ્દાઓનો અભ્યાસ એટલે કે આપણે हम प्रैक्टिस करेंगे. इन सभी पॉइंट्स की हम प्रैक्टिस करेंगे जो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है. तो चैप्टर नंबर 8, 9, 10 और 12. तो अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 से, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स, और गुजराती में उसको हम कहेंगे चतुष्कोण. तो क्वाड्रिलेटरल्स स्टार्ट करें तो ये रहा. तो क्वाड्रिलेटरल्स में हमें क्या स्टडी करना है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन. You have studied many properties, sorry, you have studied many properties of triangle in chapter 6 and 7. चैप्टर नंबर 6 में और चैप्टर नंबर 7 में हमने ट्राइंगल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने स्टडी की है. You know that on joining three non-collinear points in pairs, the figure so obtained is a triangle. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम 3 non-collinear points को join करेंगे तो हमें triangle मिलेगा. Now let us mark 4 points and see what we obtain on joining them in
pairs in some order. तो अगर हम 4 पॉइंट्स को 1 2 3 और ये चार पॉइंट्स है, सभी के सभी लीनियर है, एक लाइन में होंगे तो उसे हम कहेंगे लीनियर। तो ये चारों के चारों पॉइंट्स लीनियर है तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अगर चार में से एक दो तीन पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, मतलब कि नॉन कोलिनियर है, और ये चौथा पॉइंट, इसमें से अगर 3 पॉइंट भी, चार में से 3 पॉइंट अगर लीनियर है और एक पॉइंट लीनियर नहीं है तो फिर हमें ट्रायंगल मिलेगा। देखो 3 पॉइंट्स लीनियर है, ये 3 पॉइंट लीनियर है मतलब कि एक लाइन मिलेगा, और चौथा पॉइंट बाहर है तो हमें ये ट्रायंगल मिलेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉइंट यहाँ पर हो, एक पॉइंट यहाँ पे हो, एक पॉइंट यहाँ पे हो, एक पॉइंट यहाँ पे हो, मतलब कि चारों ही लीनियर नहीं है, तो चारों को ही अगर पैर में ज्वाइन करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन किया, इन दोनों को ज्वाइन किया, इन दोनों को ज्वाइन किया और इन दोनों को ज्वाइन किया, तो हमें ये फिगर मिलेगा, ऐसा डायग्राम मिलेगा। और पॉइंट्स अगर ऐसे हैं 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट्स इस तरह से अगर होंगे और उनको हमने ज्वाइन किया पैर में, इन दोनों को ज्वाइन किया, इन दोनों को ज्वाइन किया, इन दोनों को ज्वाइन किया और इन दोनों को ज्वाइन किया, तो हमें ऐसा डायग्राम मिलेगा। नोट दैट इफ ऑल द पॉइंट्स आर कोलिनियर, अब यहाँ पे क्या कहा गया है, नोट दैट इफ ऑल द पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब क्या चारों के चारों पॉइंट्स अगर कोलिनियर होंगे, वी ऑब्टेन अ लाइन सेगमेंट, तो हमें लाइन सेगमेंट मिलेगा, ये लाइन मिला हमें। इफ 3 आउट ऑफ 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, चार में से अगर 3, जैसा कि हमने ये डायग्राम में देखा कि अगर चार में से 3, ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर चार में से 3 कोलिनियर है, 1 2 3 कोलिनियर है, चौथा पॉइंट यहाँ पर है, तो 3 अगर कोलिनियर है, इफ 3 आउट ऑफ 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, वी गेट अ ट्राइंगल, तो हमें ट्राइंगल मिलेगा। ठीक है, ये इस डायग्राम में आप देख सकते हो। एंड इफ नो 3 पॉइंट्स आउट ऑफ 4 आर कोलिनियर, अगर चारों में से 3 पॉइंट्स, कोई भी 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर नहीं है, तो वी ऑब्टेन अ क्लोज्ड फिगर विथ 4 साइड्स, तो हमें ऐसा क्लोज्ड फिगर मिलेगा जिसकी 4 साइड्स होगी, 1 2 3 4। सच अ फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 4 पॉइंट्स इन एन ऑर्डर इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल, तो फिर हम ऐसी फिगर को क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल, तो ऐसी फिगर को हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल, इसे क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल। हमारे चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल किसे कहेंगे, तो अगर 4 पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया किसी भी ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में मतलब कि पैर में, इन दोनों की पैर इनको ज्वाइन किया, इन दोनों की पैर इनको ज्वाइन किया, इन दोनों के पैर को ज्वाइन किया और इन दोनों के पैर को ज्वाइन किया, तो ये ज्वाइन करने से जो फिगर बनता है इसे क्लोज्ड फिगर कहते हैं, और ऐसी क्लोज्ड फिगर को कहते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। तो ये हो गई क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन। इन दिस बुक वी विल कंसीडर, तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है, ये फिगर 4 जो है वो भी क्वाड्रिलेटरल है, इसकी भी 4 साइड्स है, 1 2 3 और ये 4, इसकी भी 4 साइड्स है और ये भी क्लोज्ड फिगर है, तो इसको भी क्वाड्रिलेटरल कहेंगे हम, इसको भी क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। सच अ फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 4 पॉइंट्स इन एन ऑर्डर इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। In this book we will consider only quadrilaterals of type given in figure 3, तो हम जो फिगर 3 में जिस टाइप का क्वाड्रिलेटरल दिया है उसी टाइप की फिगर्स को स्टडी करेंगे, ना कि इस टाइप की ऐसी वाली फिगर को स्टडी करेंगे। हम सिर्फ ऐसी वाली फिगर को ही, ऐसे वाले क्वाड्रिलेटरल को ही स्टडी करेंगे। क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स, क्वाड्रिलेटरल को कितनी साइड्स होती है, 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टाइसेस। तो ये साइड नंबर 1, ये साइड नंबर 2, ये साइड नंबर 3, ये साइड नंबर 4। तो क्वाड्रिलेटरल को कितनी साइड्स होती है, 4 साइड्स। क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स, 4 एंगल्स, तो ये एक एंगल, ये सेकेंड एंगल, ये थर्ड एंगल, ये फोर्थ एंगल, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टाइसेस। वर्टाइसेस मतलब क्या, तो जो 4 पॉइंट्स है उसको वर्टाइसेस कहते हैं, तो ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3, ये पॉइंट 4, तो ये 4 वर्टाइसेस है, वर्टाइसेस ए, वर्टाइसेस बी, वर्टाइस सी, वर्टाइस डी। तो ये 4
वर्टाइसिस होती है क्वाड्रिलेटरल को। ओके, तो ये हमने देख लिया क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। अब इन क्वाड्रिलेटरल ABCD are 4 sides। तो जो हमने क्वाड्रिलेटरल देखा था ये रहा क्वाड्रिलेटरल, आप यहाँ पे देख सकते हो ABCD। ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्या कहेंगे हम, क्वाड्रिलेटरल ABCD ऐसे कहा जाता है, ऐसे लिखा जाता है क्वाड्रिलेटरल ABCD, मतलब कि ये वाला डायग्राम ABCD, इसको कहेंगे हम क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD में AB एक साइड है, BC दूसरी साइड है, CD तीसरी साइड है और DA चौथी साइड है। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB, BC, CD and DA are the 4 sides. A, B, C and D are 4 vertices. A, ये B, ये C और ये D, ये 4 vertices है। एंगल ए, एंगल को कैसे लिखेंगे हम, ये जो सिंबल है वो एंगल का सिंबल है ऐसे। तो ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। जब मैं एंगल कहूँ इसका मतलब कि ऐसा सिंबल। तो ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी आर 4 एंगल्स। कौन से एंगल है, तो एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी, ये एंगल डी, ये 4 एंगल्स है इस क्वाड्रिलेटरल के। कौन से क्वाड्रिलेटरल के, क्वाड्रिलेटरल ABCD के, क्वाड्रिलेटरल ABCD के ये 4 एंगल्स है। नाउ जॉइन द अपोजिट वर्टाइसेस A to C। अपोजिट वर्टाइसेस मतलब कि A का अपोजिट वर्टाइस क्या हुआ C, B का अपोजिट वर्टाइस क्या हुआ D, मतलब कि सामने सामने वाला। तो जॉइन अपोजिट वर्टाइसेस A और C को जॉइन करो, B और D को जॉइन करो, तो ये 2 लाइन बनी। जॉइन द अपोजिट वर्टाइसेस A to C एंड B to D। A को C से ज्वाइन किया, B को D से ज्वाइन किया। AC एंड BD आर 2 डायगोनल्स। तो ये जो 2 लाइन बनी AC, ये एक लाइन AC और दूसरी लाइन बनी BD, इसको क्या कहेंगे हम, डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये क्वाड्रिलेटरल ABCD की डायगोनल है। AC और BD, AC एंड BD ये क्या है, डायगोनल, इसको क्या कहेंगे हम, डायगोनल। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी मोर अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इस चैप्टर में हम कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं ये स्टडी करेंगे, देयर प्रॉपर्टीज, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, एंड स्पेशली दोज ऑफ पैरेललोग्राम। और उसमें भी क्वाड्रिलेटरल में भी एक खास टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसे कहते हैं पैरेललोग्राम। एक होता है ये होता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ये तो हम समझ गए कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। और उसमें से भी एक खास टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, उसके टाइप्स और उसकी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल है ऐसा ही, लेकिन पैरेललोग्राम एक खास टाइप का, स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। You may wonder why should we study about quadrilaterals और parallelograms। तो हमें quadrilaterals को क्यों स्टडी करना है, पैरेललोग्राम को क्यों स्टडी करना है, ऐसा आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा। तो look around you and you will find so many objects which are of the shape of a quadrilateral। तो आप अपने आसपास देखो, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिनका शेप जो है वो क्वाड्रिलेटरल के जैसा है। द फ्लोर, जो आपका फ्लोर है, जो आपका जो घर है उसका फ्लोर को देखो, उसका फ्लोर का जो शेप है वो क्वाड्रिलेटरल शेप है। वॉल्स को देखो, वॉल जो आपके रूम की वॉल्स है उनका भी शेप क्वाड्रिलेटरल है। सीलिंग, आपकी जो छत है उसका भी शेप क्वाड्रिलेटरल के जैसा है। हमारी जो विंडो है वो भी क्वाड्रिलेटरल के जैसी है। हमारे क्लासरूम के अंदर जो ब्लैक बोर्ड है वो भी क्वाड्रिलेटरल के शेप का है। ईच फेस ऑफ द डस्टर, डस्टर जो है हमारा उसका हर एक सरफेस, हर एक फेस वो भी कैसा है, क्वाड्रिलेटरल के जैसा है। ईच पेज ऑफ योर बुक, हमारी बुक का हर एक पेज उसका भी शेप क्वाड्रिलेटरल के जैसा है। द टॉप ऑफ योर स्टडी टेबल, हमारा अगर टेबल है वो भी क्वाड्रिलेटरल शेप का है।
although most of the objects we see around are of the shape of special quadrilateral called rectangle, तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर भी एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। ये सब सारे के सारे, ये देखो ब्लैक बोर्ड कैसा है, रेक्टेंगल है, बुक कैसी है, रेक्टेंगल है, तो टेबल का जो ये टेबल है वो भी कैसा है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल ही है। क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? जिसकी 4 साइड्स हो और 4 एंगल्स हो, 4 वर्टाइसेस हो, उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल्स की ये सब टाइप्स है। क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल्स की टाइप्स है, एक टाइप होती है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का शेप कैसा होता है ये तो आपको पता है। फिर एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है पैरेललोग्राम, वो हम आगे स्टडी करेंगे तब पता चलेगा। अब दूसरा टॉपिक जो है हमारा, अभी ये हमने समझ लिया कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो अभी क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी है, उसको कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा उसके एंगल का सम, मतलब कि एंगल्स को ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो उसको कहेंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी। Let us now recall the angle sum property of a quadrilateral. The sum of the angles of a quadrilateral is 360 degree. This can be verified by drawing a diagonal and dividing the quadrilateral into two triangles. तो देखो ये क्या कहते हैं कि ये बुक में क्या लिखा हुआ है कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसके जो 4 एंगल्स है, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, तो इनका जो भी मेजरमेंट होगा, फॉर एग्जांपल ये है 60, ये है 60, 60 और 60 120, 120 और फॉर एग्जांपल ये है 90, तो 120 प्लस 90 कितना हुआ 212, तो सॉरी 210, और ये होगा 150। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है कि जो कोई भी, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा उसके एंगल्स, चारों एंगल्स का सम एडिशन करेंगे अगर हम, तो 360 डिग्री होगा। तो करके देखो 60 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 150, तो 360 डिग्री होगा। तो ज़रूरी नहीं, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा है कि ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, कोई भी हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन अगर चारों एंगल का आप सम करोगे तो वो 360 डिग्री ही होगा। ये तो मैंने यहाँ पर जानबूझकर 360 हो ऐसे मैंने एंगल्स लिए हैं, लेकिन कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा आप मेजर करके देखना, कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप ड्रॉ करो और फिर चारों एंगल को मेजर करो। इस ये जो आपको टेक्स्ट बुक दिया हुआ है यहाँ पर, ये टेक्स्ट बुक में ये जो एग्जांपल दिया हुआ है, इसके चारों एंगल आप मेजर करो और फिर पता करो कि चारों एंगल का सम कितना होता है, तो आपको पता चलेगा कि 360 डिग्री ही होता है। तो ये है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब ये 360 डिग्री कैसे होता है, तो उसके लिए यहाँ पे एक आपको एक्टिविटी, एक चीज़ करनी है। आपको क्या करना है, आपको कि यू हैव टू डू, इस क्वाड्रिलेटरल को आपको एक डायगोनल ड्रॉ करना है इस क्वाड्रिलेटरल में, ए से सी। तो ए से सी आप डायगोनल ड्रॉ करोगे, ए से सी एक डायगोनल, सॉरी तो ए से लेकर सी एक डायगोनल ड्रॉ करोगे तो ये जो पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल था वो दो दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। ये एक ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल, ऐसे दो ट्रायंगल बन गए इस डायगोनल से। तो हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ये हमने पहले स्टडी किया था। तो ये ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री और ये दूसरे वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो फिर ये जो दोनों एंगल है ये टोटल मिला के तो ये क्वाड्रिलेटरल का एंगल हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे और इसको, ये दोनों ही ट्रायंगल को ऐड करोगे तो एक्चुअली में तो ये तो क्वाड्रिलेटरल ही है। तो दो टोटल कितना होगा 360। सो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, लेट ए बी सी डी बी अ क्वाड्रिलेटरल एंड ए सी बी अ डायगोनल, व्हाट इज द सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल ए डी सी। ट्रायंगल ए डी सी के अंदर सम कितना होता है 180 डिग्री।
फिर ट्रायंगल ए बी सी के अंदर सम कितना होता है 180 डिग्री, तो टोटल कितना होगा 360 डिग्री। तो ये सिंपल सी बात है। तो देखो यू नो दैट डी ए सी प्लस ए सी डी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। पहले वाले ट्रायंगल, जो ये ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल था ए बी सी डी, ओके, तो ये सा, तो डी ए सी मतलब कि ये एंगल डी ए सी मतलब कि ये एंगल, प्लस एंगल ए सी डी मतलब कि ए सी डी मतलब कि ये एंगल, और एंगल डी मतलब कि ये एंगल। तो इन तीनों ही एंगल का एडिशन कितना होगा 180 डिग्री। सिमिलरली इस ट्रायंगल में भी ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, सी ए बी एंगल सी ए बी, तो सी ए बी मतलब कि ये एंगल, एंगल ए सी बी मतलब कि ये एंगल, और एंगल बी मतलब कि ये एंगल, इसका भी एडिशन कितना होगा 180 डिग्री। और फिर जब हम सारे के सारे एंगल्स को ऐड करेंगे, सभी एंगल्स को ऐड कर देंगे, तो 360 डिग्री हो जाएगा। 180 प्लस 180 360 डिग्री। तो सभी को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा ये दोनों ऐड होके एंगल ए बन जाएगा, फिर एंगल बी, ये दोनों ऐड होके एंगल सी बन जाएगा, और ये एंगल डी। तो एंगल ए डी बी सी इज इक्वल टू 360। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। इसको कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ इतना ही है एंगल सम प्रॉपर्टी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में उसके चारों ही एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। बस इतना ही है एंगल सम प्रॉपर्टी। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, तो यहाँ पर आप डायग्राम देखिए, कितने टाइप के अलग अलग टाइप की डायग्राम दिख रही है। ये सभी के सभी क्वाड्रिलेटरल्स है और इन सभी का अलग अलग नाम है। इसको हम पहचानते हैं। ये जो थर्ड वाला डायग्राम है इसको हम पहचानते हैं, इसको हम क्या कहते हैं रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। इसको भी हम पहचानते हैं, इसको हम क्या कहते हैं स्क्वायर। इसको हम नहीं पहचानते, इसका नाम नहीं जानते, इसका नाम नहीं जानते, इसका नाम नहीं जानते, तो हम जान लेंगे आगे। तो देखो, one pair of opposite sides of quadrilateral ABCD in figure 8.5, ये फिगर मतलब फिगर 1 8.51, namely AB, तो इसको हम कहेंगे ये जो पहला डायग्राम है, ये जो फर्स्ट डायग्राम है, इसको हम कहेंगे ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम कैसा होता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रेपेजियम में क्या होता है, एक साइड, ये साइड ए बी और साइड डी सी पैरेलल है ना, पैरेलल है। तो ये बाकी की ये साइड और ये साइड पैरेलल नहीं है, सिर्फ एक दो साइड सिर्फ पैरेलल है। तो एक पैर पैरेलल है, बाकी दूसरी पैर पैरेलल नहीं है, तो इसको हम कहेंगे ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम स्पेलिंग देख लेना आप, TRAPEZIUM, ट्रेपेजियम, इसको कहेंगे ट्रेपेजियम। फिर फिगर 2, 3 एंड 4 एंड 5 आर पैरेलल। देखिए बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर पैरेलल। तो इसमें दोनों ही पैर, ये एक पैर और ये दूसरी पैर, ये भी दोनों ही पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों भी पैरेलल है। इसमें भी ये साइड पैरेलल है, ये साइड और ये साइड भी पैरेलल है। पैरेलल मतलब कि कहीं पर भी इंटरसेक्ट ना करे, उसको पैरेलल कहते हैं। फिर इस फिगर में, इस डायग्राम में भी ये साइड पैरेलल है और ये पैर भी पैरेलल है। एक पैर, ये वाली साइड्स पैरेलल है और ये वाली साइड्स भी पैरेलल है। तो इन चारों ही इसमें both pairs of opposite sides of a quadrilaterals are parallel. Such quadrilaterals are called parallelograms. तो इन चारों को parallelograms कहेंगे, 1 2 3 और ये 4, इन चारों को पैरेललोग्राम कहेंगे। तो स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है और ये भी पैरेललोग्राम है और ये भी पैरेललोग्राम है। तो अब समझ में आया पैरेललोग्राम किसे कहते हैं। पैरेललोग्राम उस क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं जिसकी दोनों ही पैर, दोनों ही साइड्स, अपोजिट साइड्स की पैर, मतलब कि एक पैर हुई ये और दूसरी पैर हुई ये, दोनों ही कैसी होती है पैरेलल होती है, तो इसको कहते हैं हम पैरेललोग्राम। सो क्वाड्रिलेटरल PQRS ऑफ फिगर 8.52, तो ये जो
क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस जो है वो है पैरेललोग्राम। ओके, समझ में आया? तो पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? ओके, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर एक और चीज, पैरेललोग्राम क्या होता है ये तो हमने समझ लिया। तो रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल का शेप आपको पता है, रेक्टेंगल का शेप कैसा होता है? ऐसा होता है। तो रेक्टेंगल में ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये साइड और ये साइड भी पैरेलल है। इसको अगर हम नाम दें तो पैरेललोग्राम सॉरी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। और इस पैरेललोग्राम में हर एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, सभी के सभी एंगल्स कैसे होते हैं? 90 डिग्री। तो ऐसे वाले पैरेललोग्राम को हम कहते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है और जिसके सारे के सारे एंगल्स कैसे हैं? 90 डिग्री। और रेक्टेंगल में एक और चीज़ होती है कि जो अपोजिट अपोजिट साइड्स है वो इक्वल होती है। तो ये है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी। उसके बाद एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है रोम्बस। रोम्बस कैसा होता है? ऐसा। तो रोम्बस और रेक्टेंगल में सिर्फ इतना ही फर्क है, रोम्बस में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है, लेकिन एंगल्स, सभी के सभी एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते। अगर 90 डिग्री के होते तो रेक्टेंगल होता। तो 90 डिग्री के नहीं होते एंगल्स, बाकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और इक्वल तो होती ही है। तो इसे कहेंगे हम सॉरी 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 फ्रेंड्स, रोम्बस में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स, सभी साइड्स कैसी होती है? सॉरी, रेक्टेंगल के बाद हम स्टडी करेंगे स्क्वायर को, स्टडी करते हैं स्क्वायर। तो रेक्टेंगल में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है, और स्क्वायर में क्या होता है? सभी साइड्स इक्वल होती है। अपोजिट अपोजिट साइड्स पैरेलल तो होती ही है, मतलब कि ये साइड और ये साइड पैरेलल तो है ही, और ये साइड और ये साइड भी पैरेलल है, लेकिन इसके साथ में सभी साइड्स इक्वल भी है। हर एक साइड्स इक्वल है और हर एंगल 90 डिग्री का है। तो इसको कहेंगे हम स्क्वायर। इसको कहेंगे हम स्क्वायर। तो रोम्बस किसे कहेंगे? रोम्बस में भी, रोम्बस में क्या होता है कि हर एक साइड इक्वल होती है, पैरेलल होती है, अपोजिट अपोजिट साइड से इक्वल और पैरेलल होती है, लेकिन 90 डिग्री के नहीं होते। बस इतना फर्क है। चारों के तो जैसा स्क्वायर में होता है कि चारों साइड्स इक्वल होती है, वैसे ही रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि रोम्बस में सिर्फ जो उसके एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते। तो स्क्वायर का ही, रोम्बस का ही एक स्पेशल टाइप है स्क्वायर। रोम्बस में 90 डिग्री नहीं होते, लेकिन स्क्वायर में 90 डिग्री एंगल होते हैं। और एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है जिसे हम काइट कहते हैं। उसमें काइट का शेप तो हमें पता है कि काइट का शेप क्या होता है। तो इस काइट के शेप में जो एडजेसेंट साइड्स होती है, मतलब कि आसपास की साइड, बाजू वाली साइड, वो इक्वल होती है। इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ऑफ फिगर 8.56, 8.5 की सिक्स्थ फिगर। तो 8.5 ये रही ये फिगर। 8.5 की सिक्स्थ फिगर, मतलब कि ये वाली डायग्राम। इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ऑफ फिगर 8.56 AD इज इक्वल टू CD। तो ये जो साइड है AD इज इक्वल टू CD, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है। AB इज इक्वल टू CB, AB और CB इक्वल है। टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। तो इस ये पैरेललोग्राम नहीं है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल है। कौन से टाइप का? काइट। इसको कहेंगे हम काइट।
तो ये है काइट. नोट दैट स्क्वायर, रेक्टेंगल्स एंड रोम्बस आर ऑल पैरेललोग्राम्स. A square is a rectangle and also a rhombus. Parallelogram is a trapezium. A kite is not a parallelogram. A trapezium is not a parallelogram. In a trapezium, we require both pairs to be parallel in a parallelogram. A rectangle or rhombus is not a square. तो क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, ये समझने के लिए मैं यहाँ पर एक चार्ट बनाता हूँ. तो इस चार्ट में सबसे पहले मैं लिखूंगा कि क्वाड्रिलेटरल्स. तो क्वाड्रिलेटरल्स मतलब क्या, कि जिस डायग्राम में, जिस क्लोज्ड फिगर में 4 साइड्स हो और 4 एंगल हो, उसे हम क्वाड्रिलेटरल्स कहेंगे. फिर क्वाड्रिलेटरल्स हमने कौन से टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स देखे. तो सबसे पहले टाइप का क्वाड्रिलेटरल देखा ट्रेपेजियम. दूसरे टाइप का देखा हमने पैरेललोग्राम. और तीसरे टाइप का हमने देखा काइट. तो ये तीनों ही अलग अलग टाइप के क्वाड्रिलेटरल है. ट्रेपेजियम मतलब कि जिसमें एक और दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और बाकी की दो साइड्स पैरेलल नहीं होती है. पैरेललोग्राम में क्या होता है, दोनों ही पैर्स पैरेलल होती है. ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, ये और ये वाली साइड भी पैरेलल है, तो उसे हम कहेंगे पैरेललोग्राम. और काइट में क्या होता है कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, मतलब कि ये साइड और ये साइड इक्वल होगी और दूसरी ये साइड और ये साइड इक्वल होगी. तो ये है काइट. अब पैरेललोग्राम में भी अलग अलग टाइप के पैरेललोग्राम है. तो पैरेललोग्राम में हमने कौन से टाइप्स के देखे. तो पैरेललोग्राम में फिर से हमने 3 टाइप्स के देखे. एक हमने देखा रेक्टेंगल, दूसरा हमने देखा स्क्वायर और रोम्बस. ये सारे के सारे पैरेललोग्राम है. तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, मतलब कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, और एंगल 90 डिग्री का होता है, एंगल 90 डिग्री का. स्क्वायर में चारों ही साइड्स इक्वल होती है, चारों ही साइड्स कैसी होगी, इक्वल होगी. और रोम्बस में भी चारों ही साइड्स इक्वल होगी लेकिन 90 डिग्री के एंगल नहीं होंगे. रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल और लेकिन 90 डिग्री का एंगल नहीं होगा. तो इतने टाइप के क्वाड्रिलेटरल हमने देखे. अब इन क्वाड्रिलेटरल्स को गुजराती में क्या कहते हैं ये जानना ज़रूरी है. गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स को ये जानना ज़रूरी है. इंग्लिश मीडियम वाले ये तो याद रख सकते हैं, लेकिन गुजराती मीडियम वालों को इनका गुजराती नाम भी याद रखना पड़ेगा. तो गुजराती मीडियम वालों को मैं बता दूं कि क्वाड्रिलेटरल मतलब कि चतुष्कोण. क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुष्कोण. पैरेललोग्राम मतलब समांतर बाजू चतुष्कोण. समांतर बाजू चतुष्कोण. रेक्टेंगल मतलब लंबचौरस. स्क्वायर मतलब कि चौरस. और रोम्बस मतलब कि समभुज चतुष्कोण. તો આ નામ યાદ રાખવા પડશે. કાઇટ એટલે કે તમે પતંગ કહી શકો છો, પતંગ આકાર. ટ્રેપેઝિયમ એટલે કે સમલંબ ચતુષ્કોણ. અને કાઇટ એટલે કે પતંગ આકાર ચતુષ્કોણ. તો હવે તમને સમજાઈ ગયું હશે કે ચતુષ્કોણના કેટલા પ્રકાર છે. તો ચતુષ્કોણના 3 પ્રકાર છે. એમાંનો એક પ્રકાર છે ટ્રેપેઝિયમ એટલે કે સમલંબ ચતુષ્કોણ. બીજો પ્રકાર છે પેરેલેલોગ્રામ એટલે કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ. અને ત્રીજો છે કાઇટ એટલે કે પતંગાકાર ચતુષ્કોણ. એમાં પણ જે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે એના પાછા એની અંદર 3 પ્રકારના અલગ અલગ છે. એક છે લંબચોરસ, એક છે ચોરસ અને એક છે સમભુજ ચતુષ્કોણ. ઓકે,
તો આટલી માહિતી આપણે યાદ રાખવાની છે. તમને પરીક્ષામાં આવી રીતે પૂછાઈ શકે કે ચોરસ એ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે કે નહીં. તો શું જવાબ આવશે? હા, ચોરસ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે, પણ દરેક સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ, આ બધા જ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે, દરેક સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ ચોરસ ન કહેવાય. કોક લંબચોરસ પણ હોય ને કોક સમભુજ ચતુષ્કોણ પણ હોય. તો પછી આવી રીતે પણ પૂછી શકાય કે ચોરસને સમભુજ ચતુષ્કોણ કહેવાય કે ન કહેવાય. તો સમભુજ ચતુષ્કોણની વ્યાખ્યા શું છે કે ખાલી ચારે બાજુ સરખી હોય તો સમભુજ ચતુષ્કોણ. તો ચોરસની ચારે બાજુ સરખી હોય તો ચોરસને સમભુજ ચતુષ્કોણ કહેવાય, પણ સમભુજ ચતુષ્કોણને ચોરસ ન કહેવાય. કેમ? કેમ કે સમભુજ ચતુષ્કોણના જે ખૂણા છે એ 90 ડિગ્રીના ન હોય, 90 અંશના ન હોય, એટલે સમભુજ ચતુષ્કોણને ચોરસ ન કહેવાય, પણ ચોરસને સમભુજ ચતુષ્કોણ કહેવાય. એવી જ રીતે ચોરસને લંબચોરસ કહી શકાય, કેમ કે લંબચોરસમાં શું હોય કે એંગલ 90 ડિગ્રીનો હોવો જોઈએ અને સામસામેની બાજુ સરખી હોવી જોઈએ. તો એ તો છે. તો ચોરસને લંબચોરસ કહી શકાય, પણ લંબચોરસને ચોરસ ન કહેવાય, કેમ કે ચોરસમાં બધી બાજુઓ સરખી હોય, લંબચોરસમાં ખાલી સામસામેની બાજુઓ સરખી હોય. तो आवा प्रकार प्रश्नों तमने एग्जाम में पूछा से. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे कि स्क्वायर पैरेललोग्राम है तो यस है, लेकिन हर कोई एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट अ स्क्वायर. सम ऑफ मे बी रेक्टेंगल, सम पैरेललोग्राम्स could be square and some parallelogram could be rhombus. But you also may be asked that rectangle is a square. So no, square is a rectangle, but rectangle is not a square. Then they can ask also that rhombus is a square. No, rhombus is not a square, but square is a rhombus. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे. तो आपको ये समझना होगा, याद रखना होगा कि कौन सा पैरेललोग्राम और कौन सा क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का हो सकता है, किस टाइप का नहीं हो सकता. तो चलिए आगे स्टडी करते हैं. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड ऑल्सो अ रोम्बस. स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल भी है और रोम्बस भी है. पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम. पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है, लेकिन ट्रेपेजियम किसे कहते हैं? जिसका एक पैर पैरेलल हो. तो पैरेललोग्राम में तो दोनों ही पैर पैरेलल होती है ना, तो पैरेललोग्राम को हम ट्रेपेजियम कह सकते हैं. काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम. काइट को हम पैरेललोग्राम नहीं कहेंगे. ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम. ट्रेपेजियम भी पैरेललोग्राम नहीं है. रेक्टेंगल और रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर. रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है और रोम्बस भी स्क्वायर नहीं है. स्क्वायर में क्या होता है? चारों साइड इक्वल और एंगल 90 डिग्री. तो रोम्बस में 90 डिग्री के एंगल नहीं होंगे तो वो स्क्वायर होगा. ओके, अगर 90 डिग्री एंगल है, रोम्बस है, तो उसे हम रोम्बस नहीं कहेंगे, उसे फिर हम स्क्वायर कहेंगे. ठीक है, तो रेक्टेंगल को भी हम स्क्वायर नहीं कहते. रेक्टेंगल और रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर. तो ये सिंपल सी चीज़ है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ. तो आगे बढ़ते हैं. लुक एट फिगर. वी हैव अ रेक्टेंगल एंड अ पैरेललोग्राम विथ सेम पेरीमीटर 14 सेंटीमीटर. एक है, ये है रेक्टेंगल और ये है पैरेललोग्राम. दोनों की ही पेरीमीटर मतलब कि दोनों का सभी साइड्स का डिस्टेंस टोटल कितना है? 14 सेंटीमीटर. मतलब कि 4 सेंटीमीटर, फिर ये 3 सेंटीमीटर, फिर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, सब मिला के 14 सेंटीमीटर होता है. इसको कहते हैं पेरीमीटर. और इसका भी पेरीमीटर कितना है? 14 सेंटीमीटर. दोनों का ही पेरीमीटर 14 सेंटीमीटर है. हियर द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज. इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना है? डीपी इंटू ए बी. मतलब कि डी पी इंटू ए बी. तो हाइट जितनी है और बेस, इसको कहेंगे बेस और इसको कहेंगे हाइट. तो ये होगा एरिया इसका. डीपी इंटू ए बी इस पैरेललोग्राम का एरिया होगा. एंड दिस इज लेस देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. और ये जो एरिया है वो रेक्टेंगल के एरिया से कम है. रेक्टेंगल का एरिया क्या है? ए बी इंटू ए डी. ओके, ऐसा क्यों? ये क्यों हुआ? इसका रेक्टेंगल का, दोनों का ही पेरीमीटर सेम है, लेकिन रेक्टेंगल का एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया कम है. ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों का ही फॉर्मूला देखो क्या होता है? बेस इंटू हाइट. तो इसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर, लेकिन इसकी हाइट ये 4 सेंटीमीटर है, लेकिन ये तो 4 सेंटीमीटर से कम ही होगी. तो 3 इंटू 4 सेंटीमीटर से कम, मतलब ये 3 इंटू 4 12 होगा, ये 12 से इसका आंसर कम आएगा. इसलिए जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया कम है.
जनरली स्वीट शॉपकीपर्स कट बर्फीज इन द शेप ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखो अभी इसीलिए क्योंकि ये जो पैरेललोग्राम होता है उसका एरिया कम होता है, इसीलिए जो मिठाई वाले होते हैं, मिठाई की दुकान जिनकी होती हैं, वो जो जितने भी बर्फ़ी होंगी उनका जो या फिर जो भी स्वीट्स होंगी उनको पैरेललोग्राम शेप में क्यों कट करते हैं, क्योंकि इससे बचत होती है, उनको इसका एरिया कम होता है इसलिए। टू अकोमोडेट मोर पीसेस इन द सेम ट्रे, एक ट्रे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पीस आ जाए इसलिए वो इस शेप में कट करते हैं, ये रीज़न हो सकता है। Let us now review some properties of parallelogram learned in earlier classes. તો हमने अब तक जो પેરેલેલોગ્રામ એટલે કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ આપણે જે શીખ્યા છીએ એના કેટલાક ગુણધર્મો અથવા તો એની કેટલીક પ્રોપર્ટીઝ હવે આપણે સ્ટડી કરીશું। તો મિત્રો આ વિડીયો થોડોક લાંબો થઈ જશે, પણ આ જ વિડીયોમાં આપણે આખા ચેપ્ટરને કમ્પ્લીટ કરવાનો છે અને આપણે 4 વિડીયોમાં આ જે 4 પ્રકરણ આપણને ભણવાના છે એ આપણે કમ્પ્લીટ કરવાનું છે, કેમ કે આપણે યુનિટ ટેસ્ટ માટે પ્રિપેર કરીએ છીએ। તો જરૂર જો જેટલો લાંબો થાય વિડીયો તો વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂર જોજો મિત્રો, અને સ્કીપ ન કરતા। હું જે પણ કરાવું છું એ એકદમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। હવે આપણે પ્રોપર્ટીઝ ઓફ અ પેરેલેલોગ્રામ જોવાનું છે। પેરેલેલોગ્રામની કેટલી પ્રોપર્ટી છે, કયા ગુણધર્મો છે, પ્રોપર્ટી એટલે કે ખાસિયત શું છે પેરેલેલોગ્રામની પ્રોપર્ટી કઈ કઈ છે। તો અહીંયા તમને એક પેરેલેલોગ્રામ દેખાય છે અને આને કહેવાય પેરેલેલોગ્રામની ડાયગોનલ। ડાયગોનલ એટલે કે જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ઓકે। તો જે આપણે પ્રોપર્ટી ભણવાના છીએ તો એમાં છે પહેલો થિયરમ 8.1 એટલે કે પ્રમેય 8.1। થિયરમ 8.1 શું કે છે આપણે જરાક સમજીએ। તો a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangle। a diagonal એટલે કે વિકર્ણ, ગુજરાતીમાં કહેવાય વિકર્ણ। તો વિકર્ણ એટલે કે શું, આ જે પોઈન્ટ છે અને એનો સામેનો પોઈન્ટ છે આ બેને આપણે જો જોઈન કરીએ તો આને કહેવાય ડાયગોનલ એટલે કે આને કહેવાય વિકર્ણ। અ ડાયગોનલ ઓફ અ પેરેલેલોગ્રામ, સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના વિકર્ણ, તો એ ચતુષ્કોણને બે કોન્ગ્રુએન્ટ એટલે કે એકરૂપ, કોન્ગ્રુએન્ટ ટ્રાયંગલ્સ એટલે કે એકરૂપ ત્રિકોણમાં વિભાજન કરે છે। કોણ, તો આ વિકર્ણ। સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનો વિકર્ણ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણને બે એકરૂપ એટલે કે એક સરખા ત્રિકોણમાં વિભાજન કરે છે। A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles। तो एक ट्रायंगल है ये वाला और दूसरा ट्रायंगल है ये वाला, दोनों ही कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल, ओके। तो ये है थियरम 8.1। अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसको हमें प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करोगे, तो लेट ABCD, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। थियरम 8.1 का प्रूफ आपको पूछा जा सकता है, तो कैसे प्रूफ करना है इसके लिए आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना। लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम एंड AC बी अ डायगोनल। ABCD पैरेललोग्राम है और AC जो है वो डायगोनल है, ये लिखा हुआ है, आपको भी ऐसे ही लिखना है। ऑब्जर्व दैट द डायगोनल AC डिवाइड्स पैरेललोग्राम ABCD इनटू टू ट्रायंगल्स। तो ये जो डायगोनल AC है वो इस पैरेललोग्राम ABCD को टू ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रही है, और उन ट्रायंगल्स का नाम क्या रखेंगे, क्या है, ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल है ABC मतलब कि ये वाला एक ट्रायंगल ABC, एंड ट्रायंगल CDA ये दूसरा ट्रायंगल, ओके। तो दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रही है डायगोनल। we need to prove that these triangles are congruent। हमें क्या प्रूफ करना है, we need to prove that these triangles are congruent। ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल CDA नोट दैट BC पैरेलल AD, ये जो सिंबल है वो पैरेलल का सिंबल है। इसका मतलब होता है कि BC पैरेलल AD, BC AD को पैरेलल है, BC इज पैरेलल टू AD। BC कहाँ है, BC ये रहा, ये BC AD को पैरेलल है। सबसे पहला स्टेप ये लिखा हमने, BC पैरेलल है AD एंड AC इज ट्रांसवर्सल। तो AC अगर ये दोनों लाइन, ये एक लाइन BC और ये एक लाइन AD अगर पैरेलल है तो AC
क्या हुई, ट्रांसवर्सल हुई। ट्रांसवर्सल का क्या मतलब होता है, ट्रांसवर्सल का मतलब ये होता है कि कोई दो लाइन पैरेलल हो और उसको कोई तीसरी लाइन कट कर रही हो तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, उसको ये तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसको हम ट्रांसवर्सल कहेंगे। सो एंगल बी सी ए, मतलब कि एंगल बी सी, मतलब कि ये एंगल बी सी ए इज इक्वल टू डी ए सी। डी ए सी मतलब कि ये एंगल। तो हमें पता होता है कि अगर कोई ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल, इसको हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल। और वो एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके लिए हमने लिखा एंगल ये और एंगल दिस एंगल एंड दिस एंगल, मतलब कि एंगल बी सी ए एंड एंगल डी ए सी इक्वल है। यहाँ पे लिखा है इक्वल है, और यहाँ पे लिखा हुआ है रीजन। क्यों इक्वल है, तो क्योंकि ये पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स है इसलिए। ऑल्सो, और क्या चीज़ है कि ए बी और डी सी भी पैरेलल है, मतलब कि ए बी और डी सी भी पैरेलल है, तो और ए सी ट्रांसवर्सल है, ए सी इज ट्रांसवर्सल, तो फिर ये एंगल और ये एंगल भी क्या है, अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है। और एंड ए सी इज इक्वल टू सी ए, इस ट्रायंगल के अंदर ए सी और इस ट्रायंगल के अंदर भी ए सी कॉमन है ना, तो दोनों इक्वल ही होंगे, तो वो तो कॉमन है। तो फिर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये जो सिंबल है, इस सिंबल को कहते हैं कॉन्ग्रुएंट का सिंबल। ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, ऐसे इक्वल का साइन है और ऊपर ऐसे उल्टा एस, तो इसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट का सिंबल। इसका मतलब कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल सी डी ए कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों ही ए एस ए रूल से, ए एस ए रूल क्या है, तो ए एस ए रूल ये है कि किसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट हम कब कहेंगे ए एस ए रूल से, कि जब एक एंगल, फिर एक साइड और फिर एक एंगल, दूसरे ट्रायंगल के अंदर एंगल, साइड और एंगल को अगर इक्वल हो तो एंगल साइड एंगल रूल से ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो फिर यही तो हमें प्रूफ करना था कि जो डायगोनल है वो क्वाड्रिलेटरल को दो इक्वल ट्रायंगल में, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर रही है। सो हमने प्रूफ कर दिया कि डायगोनल ए सी डिवाइड्स पैरेललोग्राम ए बी सी डी इंटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ए बी सी एंड सी डी ए। तो ये हो गया प्रूफ। तो ये प्रूफ कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, सो यू हैव टू लर्न दिस, यू हैव टू बाय हार्ट दिस एनी वे, यू कैन डू इट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नाउ मेजर द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यू विल फाइंड, ये जो पैरेललोग्राम है उसकी अपोजिट साइड्स, ये साइड और ये साइड आप मेजर करो तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों ही साइड इक्वल है। और इस साइड को और इस साइड को मेजर करो तो भी आपको पता चलेगा कि वो भी साइड इक्वल है। सो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम स्टेटेड बिलो, और वही यहाँ पर लिखा हुआ है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये हो गया थ्योरम 8.2। इसको प्रूफ नहीं करना है, ये सिर्फ याद रखना है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। उसके बाद थ्योरम 8.3, ये थ्योरम 8.3 क्या कहता है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज पैरेललोग्राम। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है तो फिर वो पैरेललोग्राम है। ये प्रूफ हो गया है ना। ओके, तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम है, और अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होगी। बस यही था 8.3। 8.4 क्या है, तो 8.4 है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये है 8.4। 8.4 क्या कहता है कि पैरेललोग्राम, जो अगर पैरेललोग्राम है, फॉर एग्जांपल ये पैरेललोग्राम है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये हो गई चौथी प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी थ्योरम 8.5 क्वाड्रिलेटरल के बारे में, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसके अपोजिट एंगल्स अगर इक्वल है
मतलब कि ये एंगल इस एंगल को इक्वल है और ये एंगल का अपोजिट एंगल हुआ ये दोनों अगर इक्वल है तो ये पैरेललोग्राम होगा। और अगर पैरेललोग्राम है, ऐसा कहा है आपको क्वेश्चन में, ऐसा कहा गया है कि ये पैरेललोग्राम है, तो आपको याद रखना है कि उसके अपोजिट इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। और अगर ऐसा कहा गया है क्वेश्चन में कि अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो आपको ये पता चलना चाहिए कि वो पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो ये है 8.5। इसके बाद है 8.6। ये कुछ भी प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये याद रखनी है सारी की सारी प्रॉपर्टी। 8.6, 8.6 में क्या कहा गया है कि द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होती है, एक डायगोनल है ये और दूसरी डायगोनल है ये, तो जो डायगोनल होती है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करती है मतलब कि इक्वल में हाफ हाफ डिवाइड कर देती है, मतलब कि ये साइड और मतलब कि इतनी ये साइड और ये साइड इक्वल है, वैसे ही ये साइड और ये साइड इक्वल है, मतलब कि दोनों ही आधे आधे हो जाएंगे, बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो जो डायगोनल्स होती है पैरेललोग्राम की किसकी डायगोनल्स, पैरेललोग्राम की डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। थ्योरम 8.7, if the diagonals of a quadrilateral बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज पैरेललोग्राम। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में उसकी जो डायगोनल्स है वो अगर बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को, इसका मतलब कि वो पैरेललोग्राम है। ओके, सो ये भी हो गया। इसके बाद हमें ये जो एग्जांपल नंबर 1 है उसको हमने कैंसिल किया है क्योंकि वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो एग्जांपल 1 नहीं पूछा जाएगा। लेकिन मैं आपको रेड करके बता देता हूँ कि वो है क्या। शो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 2, तो एग्जाम्पल नंबर 2 भी नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 3 भी नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 भी नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 5 भी नहीं पूछा जाएगा, तो वो हमें नहीं करना है। उसके बाद है 8.5। 8.5 में क्या है, तो अब तक हमने जितना भी सीखा उसके अलावा अनदर कंडीशन फॉर क्वाड्रिलेटरल टू बी पैरेललोग्राम। कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है या नहीं, इसके लिए कुछ और कंडीशंस भी है, तो वो क्या है, तो वो रहा थ्योरम 8.8। तो थ्योरम 8.8 क्या कहता है, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। तो कोई क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेलल कब कहेंगे, अगर उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये साइड इस साइड को इक्वल है और ये साइड इस साइड को अगर इक्वल है और अपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो उसे हम कहेंगे पैरेललोग्राम। ठीक है, a quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides is equal and parallel। तो जो एक पैर हुई ये दोनों साइड्स की पैर और दूसरी पैर हुई इन दोनों साइड्स की पैर, दोनों ही पैर अगर इक्वल है और पैरेलल भी है तो हम कहेंगे कि ये पैरेललोग्राम है। उसके बाद है एग्जांपल नंबर 6 जो हमें नहीं करना है, और उसके बाद डायरेक्टली आता है एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 के अंदर भी हमें सिर्फ करना है क्वेश्चन नंबर 1। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करता हूँ और आई होप कि आप उसे सॉल्व कर पाओगे। द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:30। इसको कैसे रीड करोगे, ये रहा 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो दिया हुआ है, आर इन द रेशियो 3:5:9:13। तो जब भी आपको ऐसा कोई रेशियो दिया होगा किसी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का, तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि पहला नंबर क्या दिया हुआ है 3, तो पहला एंगल होगा 3x। सॉरी, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो और आपको ऐसे कहा जाएगा कि उनके सभी एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है 3:5:9:13, तो आपको पहला एंगल लेना है 3x, 3 दिया हुआ है ना, तो 3x। दूसरा एंगल आपको लेना है 5 दिया हुआ है तो आपको लेना है 5x। तीसरा दिया हुआ है 9 तो आपको लेना है 9x। चौथा दिया हुआ है 13 तो आपको लेना है 13x। सो द एरिया सो द रेशियो क्या है 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो ये सभी के सभी x की वैल्यू क्या है ये हमें पता नहीं है,
तो हमें ये सभी के सभी एंगल्स हमें फाइंड करने हैं इस क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमें पता है ना। એંગલ ચતુષ્કોણના બધા જ ખૂણાઓનો સરવાળો કેટલો થાય, 360 થાય, ये हमें पता है। तो 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ये होगा रीजन। क्यों 360 डिग्री हुआ, क्योंकि हमें पता है कि एंगल चारों ही एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो अब इस चारों को ऐड कर दो, 3 और 5 मतलब कि 8, 8 और 9 17, 17 और ये 13, 17 और 13 मतलब कि 30x, 30x इज इक्वल टू 360। सो x इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 30। तो 30 12 जा x की वैल्यू क्या मिली, 12, x की वैल्यू मिली 12। तो x के बदले अगर हम 12 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 3 जा 36 हो जाएगा, 5 12 जा 60, 9 12 जा 9 12 जा कितना होगा, 108, 108। और 13 इंटू 12 मतलब कि 144 प्लस 12 मतलब कि 6, 156। तो ये एंगल हो जाएगा 156। तो फाइंड ऑल द एंगल्स कहा था ना, तो क्या मिले एंगल्स आपको, एक एंगल मिला 36, दूसरा एंगल मिला 60, तीसरा एंगल मिला 108 और चौथा एंगल मिला आपको 156। तो ये आपको समझ में आया होगा। ओके, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब इसका आंसर लिखना कैसे है, एग्जाम में कैसे लिखना है, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर पीडीएफ बताता हूँ, उसको देख लो। तो ये रहा आपका क्वेश्चन और इसका आंसर ये रहा। आपको ऐसे लिखना है, लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन द एंगल बी एक्स। तो कॉमन रेशियो हम मान लेंगे कि x है। वी नो दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। सो तीनों को, चारों को ऐड करेंगे। एक तो फिर अगर हमने रेशियो माना है x, कॉमन रेशियो बिटवीन द एंगल्स इज x। सो पहला एंगल होगा 3x, दूसरा 5x, 9x, 13x, उनको ऐड करेंगे। 360, x की वैल्यू मिली 12। देयरफॉर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर 3x मतलब कि 3 इंटू 12 मतलब 36, 5x मतलब 5 इंटू 12 मतलब कि 60, 9x मतलब 9 इंटू 12 मतलब कि 108 और 13x मतलब कि 13 इंटू 12 156। तो ये आपको चारों के चारों एंगल मिल गए। उसके बाद एक्सरसाइज 8.1 में हमें क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 9 10 ये कुछ भी नहीं करना है, तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ही करना था। और ये जो लास्ट टॉपिक है उसके बाद आता है द मिड पॉइंट थियरम। इस चैप्टर के अंदर ये लास्ट टॉपिक है, मिड पॉइंट थियरम। तो मिड पॉइंट थियरम क्या है ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। थियरम 8.9 इसको कहेंगे हम मिड पॉइंट थियरम। ये क्या कहता है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स of two sides of a triangle is parallel to the third side. The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. इसका क्या मतलब हुआ कि एक ट्रायंगल के अंदर ये एक साइड और ये दूसरी साइड, इन दोनों ही साइड्स के मिड पॉइंट, एक मिड पॉइंट है ये मतलब बीच वाले मिडल पॉइंट, एक है ई और एक है एफ। अगर इन मिडल पॉइंट को ज्वाइन करती हुई अगर कोई लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करो तो वो लाइन सेगमेंट इस ट्रायंगल की तीसरी साइड को पैरेलल होगी। तीसरी साइड है बी सी, तो ई एफ और बी सी पैरेलल होगी। ये है मिड पॉइंट थ्योरम, इसको कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, तो ये समझ में आया आपको। अब ये क्यों पैरेलल है उसके लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन अभी हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसको हम इम्पोर्टेंट नहीं समझते। तो आगे जो थ्योरम लिखा हुआ है वो 8.9 का ही कन्वर्स है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इसका क्या मतलब हुआ, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, ट्रायंगल के अंदर एक साइड के मिड पॉइंट के अंदर से पास होती हुई लाइन, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल
पैरेलल टू अनदर साइड, दूसरी साइड को पैरेलल है, इस एक पॉइंट में से पास हो रही है लाइन और दूसरी साइड को पैरेलल है, तो वो जो लाइन है दूसरी साइड को, मतलब कि इस साइड को बाइसेक्ट करेगी, इस साइड के भी मिडिल पॉइंट में से पास होगी, बाइसेक्ट करेगी मतलब इक्वल में डिवाइड करेगी, दोनों ही इक्वल होंगे ऐसे। तो ये है थ्योरम 8.10। इसके बाद एग्जांपल 7 नहीं करना है, एग्जाम्पल 7 नहीं करना है, एग्जाम्पल नंबर 8 नहीं करना है, एक्सरसाइज 8.2 के कोई भी क्वेश्चंस नहीं करने हैं। और ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट। और ये हमारा वीडियो 1 घंटे से भी ज़्यादा मिनट का हो चुका है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताया उसको आप अपने दिमाग में फिट कर लो। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन ही मैंने बताई है, इसमें कोई भी कैलकुलेशन के जैसा कुछ भी नहीं था इस चैप्टर के अंदर कि आपको कुछ काउंट करना पड़े, कैलकुलेट करना पड़े। तो सिर्फ और सिर्फ थियरी टाइप का क्वेश्चन था, सिर्फ इंफॉर्मेशन ही थी। तो इस इंफॉर्मेशन को आप अपने माइंड में ऐसे फिट कर लो कि इस इंफॉर्मेशन के ऊपर से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको वो आना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूँगा कि आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि हम आगे भी इसी तरीके से चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 12 के वीडियो बनाऊंगा, मैं अपलोड करूंगा। तो आपको उसकी लिंक ना सेंड करनी पड़े, आपको ऑटोमेटिक जब मैं अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो प्लीज़ अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 समांतर बाजू चतुष्कोण અને ત્રિકોણના क्षेत्रफल, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। तो चलिए, सी यू देन, टिल देन you enjoy your work. Okay, goodbye.